जेनेसिस 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे हिंदी में किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर आई एम सॉरी इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे जेनेसिस 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे 6, 7, 8 चैप्टर। पवित्र आत्मा हमें बहुत सुंदर ऐसा तूने वचन और एक बार हमारे सामने लाया है। पिता परमेश्वर, हम आपके द्वारा ही समझ सकते हैं। हमको पवित्र आत्मा आप सिखाओ तो हम समझेंगे, आप ना सिखाओ तो हम कुछ भी नहीं समझेंगे। आपके ऊपर हम निर्भर है। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Chapter 6 The wickedness of the world, which provoketh God's wrath, and causeth the flood, now findeth grace, the order, form, and use of the ark. First verse पढ़ेंगे। And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man, whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above, and the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, even I do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth
shall die. But with thee will I establish my covenant, and thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife, and thy son's wife with thee, and of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female, of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind. Two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Chapter 7. Noah with his family and the living creatures enter into the ark. The beginning, increase, and continuance of the flood, all flesh destroyed. First verse. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female, and of beasts that are not clean by two, the male and his female, of fowls also of the air by sevens, the male and the female, to keep seed alive upon the face of all the earth, for yet 7 days, and I will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights, and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. And Noah was 600 years old when the flood of waters was upon the earth. And Noah went in, and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark, because of the waters of the flood. Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of everything that creepeth upon the earth, there went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, the 17th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. In the same day entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them into the ark. They and every beast after his kind, all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort. And they went in unto Noah into the ark, 2 and 2 of all flesh, wherein is the breath of life. And they that went in male and female of all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lifted up above the earth, and the waters prevailed and were increased greatly upon the earth, and the ark went up on the face of the waters, and the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the high hills that were under the whole heaven
were covered. 15 cubits upward did the waters prevail, and the mountains were covered. And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl and of cattle and of beast and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man all in whose nostrils was the breath of life of all that was in the dry land died. And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. And the waters prevailed upon the earth 150 days. Chapter 8. The waters assuaged, the ark resteth on Ararat. The earth dried. Noah goeth forth of the ark, buildeth an altar, and offereth sacrifice. God promiseth to curse the earth no more. First verse say, and God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained, and the waters returned from off the earth continually. And after the end of the 150 days, the waters were abated. And the ark rested in the 7th month, on the 7th day of the month, upon the mountains of Ararat. And the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month on the first day of the month were the tops of the mountains seen. And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which he had made. And he sent forth a raven which went forth to and fro until the waters were dried up from off the earth. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand and took her and pulled her in unto him into the ark. And he stayed yet other 7 days. And again he sent forth the dove out of the ark. And the dove came into him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. And he stayed yet other 7 days, and sent forth the dove, which returned not again unto him any more. And it came to pass in the 601st year, in the 1st month, the 1st day of the month, the waters were dried up from off the earth. And Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. And in the 2nd month, on the 7 and 20th day of the month, was the earth dried. And God spake unto Noah, saying, Go forth of the ark, thou and thy wife, and thy sons, and thy sons' wives with thee. Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl, and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him, every beast, every creeping thing, and every fowl, with whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. And Noah builded an
altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings in the altar. And the Lord smelled a sweet savour. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite any more everything living as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. यही वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। उत्पत्ति 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय बीएसआई बाइबल में से। मनुष्य जाति की दुष्टता 6 अध्याय पहले वचन से। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह 9 वचन से आगे। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तो उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तो उनको जीवित रखे।
और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जल प्रलय 7 अध्याय पहले वचन से। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। 7 वचन से आगे। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 8 अध्याय पहले वचन से। जल प्रलय का अंत। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर ने बोला 40 दिन और 40 रात तक वर्षा करेगा। वो 40 दिन और 40 रात तक उसने पृथ्वी को बारिश से बरसाया, जल बरसाया। 40 दिन 40 रात तक जल बरसाया। और यहाँ पर लिखा है 24 वचन, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा।
यानी बारिश 40 दिन 40 रात चलती रही और वो पानी ठहरा रहा, 150 दिन तक प्रबल रहा, उधर से उतरा नहीं। जल प्रलय का अंत 8 अध्याय पहले वचन से। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। ये वचन हम इस्तेमाल करते हैं जब पानी, बाढ़, ऐसा कोई चीज़ है हमको मालूम पड़ता है न्यूज़ में, या कहीं तो हम खास तौर पर परमेश्वर का आत्मा बताता है तब हम ये यूज़ करते हैं। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। हालेलुया। यही बात 24 वचन में था, 7 अध्याय के 24 वचन, और 3 वचन 8 अध्याय के 3 वचन में दिखाया है कि अब वो घटने लगा। वहां से 4 वचन, 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इस से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। होम बलि का चढ़ाया जाना। 20 वचन से आगे, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमें ये वचन सिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाला समय आप सामर्थ्य अभिषेक से इन वचनों के गहरे भेद हमको और ज़्यादा सीखने के लिए मन है। हमें और ज़्यादा इसके अंदर के भेद सिखा। हमें इसमें से कुछ भी इसके अंदर से खोने मत दे। अब फादर गॉड, परमेश्वर के प्रेम वचन के खातिर जो है वो हम में उंडेला गया है, हमें उसका पूरा लाभ दे। पिता पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के आधार से, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। दिल एक हमजिया से रहा। एक्ट्स 6 chapter 9 verse से 15 verse, नहमिया 6 chapter। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 9 वचन से 15 वचन, नहमिया 6 अध्याय। हमने अपने अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ने का फैसला रखा है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के आत्मा को काम करने देना चाहते हैं। लेकिन आप जैसे पढ़ना चाहते वैसे इसे पढ़ सकते हैं। निश्चित करना है परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है वचन, और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है इस विषय में। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों में हमें अधीन कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।